हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश शकुलकर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स के लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए फर्स्ट टू लेसन के लेक्चर्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम आज डिटेल में स्टार्ट करें। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट ए लेसन स्टार्ट किया था, उसका हमने इंट्रोडक्शन लिया था। ओके, बट आज हम डिटेल में स्टार्ट करने वाले यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये जो लेसन है, ये लेसन कंसिस्ट है various types of physical quantities and their measurements and units used for that measurements. Okay, now first thing is that what is mean by unit. Unit means what? It is the reference or standard which is used for to measure various types of physical quantities like mass, length, volume. Okay, means what? जो unit हम use करेंगे for the measurement of physical quantity means, for example, this has a pen. This pen has some height, so we have to measure this height, so we can use some scale or meter tape for to measurement of this pen. So with the use of scale we can compare this pen with scale and we find out this pen having 10 centimeter height. Okay, means what? This was unit of pen, 10 centimeter. 10 centimeter, centimeter is the unit of measurement. Okay, now unit means what? It is a standard or reference which is used for to measure physical quantities. Now next, measurement. Measurement means what? It is the process to find out unknown quantity or unknown value of any object by comparing with some predetermined reference or source. This process is known as measurement. Okay, now in this lesson there are various types of quantities like physical quantity, next fundamental quantity, then next derived quantity. First point is what in that lesson? First point is physical quantity. Okay, before physical quantity there are some information about physics which we have already taken in previous lecture, but once again I will repeat this. Physics, what is meant by physics? Physics means it is a branch of science which deals with the study of various types of forces and motion. Then next, physics means we can define physics in other way. There are physics means it is the study of nature, or maybe it is a study of natural phenomena. There are number of ways to define physics. Okay, after that there are some points in this lesson. That is first point is what? Physical quantities. Okay, what is meant by physical quantity? In earlier standard means like in a 10th standard we have study about various types of unit systems, means CGS system, MKS system, FPS system, SI system. But after this there are in 11th standard there are some quantities are given and we have to measure that quantities in each and every system of units like CGS, MKS, FPS and SI system of units. Okay, now before this we have to start system of units. Before this we have to some quantities and we have study on their behavior and their definitions. Okay, so first, physical quantity. Physical quantity means what? Physical quantity means are those quantities which can be measured, that is subjectively equally and subjected equally to all three elements of scientific study, that is detailed analysis, then next precise measurement, and then next mathematical treatments. Okay, means what? Physical quantities are those quantities are those quantities are those quantities which are subjected equally which are subjected equally to the study of subjected equally to the study of three scientific elements three scientific elements, that is. अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स क्या रहता है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जो सब्जेक्टेड इक्वली टू ऑल थ्री साइंटिफिक एलिमेंट्स, मीन्स ऐसे क्वांटिटीज जो सब्जेक्टेड रहते हैं फॉर टू मेजर ऑफ टू स्टडी ऑफ साइंटिफिक एलिमेंट्स, दैट इज साइंटिफिक एलिमेंट्स हमारे ओनली थ्री रहते हैं। अब वो कौन कौन से है? दैट इज, फर्स्ट वन आता है आपका डिटेल एनालिसिस, देन नेक्स्ट आता है आपका प्रिसाइज मेजरमेंट, एंड नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट।
Okay, means what? Here is the definition of physical quantity are those quantities which are subjected equally to the study of three scientific elements, that is detailed analysis, precise measurement and mathematical treatment. Okay, now we have to see about this each and every words meaning. Okay, first फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स और ऐसी क्वांटिटीज रहती है जो कि सब्जेक्टेड रहते हैं फॉर द टू स्टडी ऑफ ऑल थ्री साइंटिफिक एलिमेंट्स मीन्स जो साइंटिफिक एलिमेंट्स है हमारे थ्री कौन कौन से डिटेल एनालिसिस प्रिसाइज मेजरमेंट एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अगर कोई ऐसी चीज़ है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इन तीनों को इंक्लूड करता है तो अगर वो इन तीनों को अगर इंक्लूड करता है तो उसको उस क्वांटिटीज को या फिर उस चीज़ को हम क्या कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी मीन्स फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि वेट है या फिर मास है या फिर सिंपल लेंथ है ओके फॉर एग्जांपल लेंथ है फॉर एग्जांपल दिस हैज अ बोर्ड दिस बोर्ड हैविंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट सम लेंथ ओके टू हैव टू मेजर दिस लेंथ ओके नाउ अगर हमें इस बोर्ड का अगर हमें ये लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना है लेंथ अगर हमें मेजर करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका लेंथ मेजर करने के लिए हमें या तो कुछ स्केल यूज करना पड़ेगा मीन्स मीटर हमें मीटर टेप हमें यूज करना पड़ेगा या फिर फुट मीटर हमें यूज करना पड़ेगा तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्या रहता है फिजिकल क्वांटिटी मीन्स आर दोज क्वांटिटी विच आर सब्जेक्टेड इक्वली थ्री साइंटिफिक एलिमेंट्स। अब देखिए मुझे लेंथ मेजर करना है लेंथ मेजर करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या है इस लेंथ का मुझे क्या करना पड़ेगा डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा मीन्स ये लेंथ जो मुझे मेजर करनी है इस लेंथ की डायरेक्शन किस तरह से या फिर वो किस तरह से सिचुएटेड स्ट्रेट है या फिर कर्वेचर है ओके ये होगा उसका डिटेल एनालिसिस। देन नेक्स्ट प्रिसाइज मेजरमेंट अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका जो मेजरमेंट रहेगा मेजरमेंट मुझे क्या लेना पड़ेगा एक्यूरेटली प्रिसाइज लेना पड़ेगा ओके मीन्स पॉइंट टू पॉइंट मुझे इसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा अगर थोड़ा सा भी अगर इसके अंदर मिस्टेक होता है तो इसका जो लेंथ मैं कैलकुलेट करूंगा वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। देन नेक्स्ट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मीन्स व्हाट अब जो लेंथ मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला फॉर एग्जाम्पल इसका लेंथ आता है फॉर एग्जाम्पल इसका लेंथ आता है 2 मीटर ओके फॉर एग्जाम्पल इसका लेंथ आया 2 मीटर इस 2 मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू द सेंटीमीटर तो मुझे यूनिट कन्वर्जन भी वहाँ पर यूज करना पड़ेगा मीन्स यूनिट कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा 2 मीटर को सेंटीमीटर्स के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मीटर्स के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मिलीमीटर्स के अंदर इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर 2 मीटर को। तो देखिए अब यहाँ इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा मीन्स मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मीन्स मैथमेटिकल फैक्टर आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स व्हाट ऐसी क्वांटिटीज रहती है जो कि सब्जेक्टेड रहती है टू ऑल थ्री साइंटिफिक एलिमेंट दैट इज डिटेल एनालिसिस प्रिसाइज मेजरमेंट एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स ओके। तो ये होगा फिजिकल क्वांटिटीज इसके कुछ एग्जांपल्स हम राइट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं फॉर एग्जांपल अब देखिए इसके लिए एग्जांपल क्या क्या आएंगे मास लेंथ टाइम then next volume then next velocity then next speed etc. There are number of examples of physical quantity there are number of examples present in our universe so we have to write etc. okay so this is about physical quantity. Then next physical quantity is divided into two types that is first one is what fundamental quantity and second one is what derived quantity. First we have to understand about physical quantity then next we have to see types of physical quantities okay there are two types of physical quantity first one is fundamental quantity and second one is derived quantity okay नोट कर लीजिए एक बार बोर्ड पर जो लिखा है उसे नोट कर लीजिए पॉज कर कर ओके। देन नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ओके अब देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर क्या क्या आएगा आपको देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी first one is what fundamental quantity and second one is what derived quantity okay types of physical quantity okay तो फर्स्ट टाइप्स हम राइट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज ओके फंडामेंटल क्वांटिटीज ओके फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स एक्चुअल में रहता क्या है वो अब हम देखने वाले हैं। सो नाउ फंडामेंटल क्वांटिटीज ओके फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स क्या रहता है फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट ओके मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहती फॉर देयर मेजरमेंट्स ओके इसका डेफिनेशन राइट करेंगे देन नेक्स्ट उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज
fundamental quantities are those quantities which do not depends on any other physical quantities for their measurements. Such quantities are called as fundamental quantities. Such quantities are called as fundamental quantities. Okay, such quantities are called as fundamental quantities. Okay, so देखिए simple है. Fundamental quantities means what? Are those quantities which do not depends on any other physical quantities for their measurements. Such quantities are called as fundamental quantities. So देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर राइट किया है. ओके, मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स ऐसी क्वांटिटीज रहती है जो कि किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहती है फॉर देयर मेजरमेंट. ओके, मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेंगे, लेंथ है या फिर मास है या फिर वेट है. ओके, मास हम देखेंगे या फिर वेट का एग्जांपल लेंगे या फिर लेंथ का लेंगे, लेंथ का ही लेंगे. ओके, या फिर टेम्परेचर का भी ले सकते हैं. ओके, तो देखिए लेंथ का हम लेंगे. फॉर एग्जांपल इस पेन का मुझे क्या करना है? लेंथ फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है. देखिए ये लेंथ फाइंड करने के किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है क्या? किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं है. इसका लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली फाइंड आउट हो सकता है बाय कंपेयरिंग इट विद सम प्रीडिटरमाइंड रेफरेंस और स्टैंडर्ड, दैट इज वी कॉल यूनिट. ओके, यूनिट के साथ अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें उसका मेजरमेंट डायरेक्टली मिल जाएगा. बट इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल अब आपको मेजर करना है, वॉल्यूम मेजर करना है या फिर आपको एरिया मेजर करना है या फिर आपको कोई बाइक है आपके पास, बाइक तो होगी, बाइक का अगर आपको स्पीड मेजर करना है. ओके, अब देखिए स्पीड अगर आपको मेजर करना है तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहता है? डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम. ओके, मींस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. मींस स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर. मींस वो क्या हुए? वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो नहीं सकती. स्पीड इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी. सेम एज फॉर वॉल्यूम इज ऑल्सो नॉट fundamental quantity. Then next same area is also not fundamental quantity. So in short, fundamental quantity means what? Are those quantities which do not depend on any other physical quantity. means वो किसी other physical quantities के ऊपर डिपेंड नहीं रहते फॉर देयर मेजरमेंट. उनका मेजरमेंट वो खुद डायरेक्टली कर सकते हैं. ओके, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे. इन शॉर्ट अगर हम इसे कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज को, फिलहाल जो हमारा दौर चालू है 2020 का. ओके, मीन्स नरेंद्र मोदी का सीजन फिलहाल चालू है. तो नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है. ओके, आत्मनिर्भर भारत बनाना है मीन्स क्या? खुद किसी अदर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद को मजबूत करेंगे और अपने कंट्री को भी स्ट्रांग करेंगे. ओके, मीन्स आत्मनिर्भर भारत. ओके, मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो इन बिकम आत्मनिर्भर. ओके, सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज. देन नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद आपको आता है फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, बट आफ्टर दिस there are 7 fundamental quantities. Okay, there are 7 fundamental quantities. ओके, इन शॉर्ट अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज ध्यान में रखना है तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना. ओके, सिर्फ खुद के ऊपर ही डिपेंड रहना फॉर देयर मेजरमेंट्स. ओके, अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया जाए तो किसी अदर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना. ओके, सो आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट. ओके, इन शॉर्ट ध्यान में रखने के लिए नरेंद्र मोदी को ध्यान में रखिए. आत्मनिर्भर भारत का मिशन उन्होंने स्टार्ट किया है. तो फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ऑल्सो कम्स इन आत्मनिर्भर भारत. ओके, देन नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, अब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है वो देख लिए. फंडामेंटल यूनिट्स. अब हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, फंडामेंटल यूनिट्स मींस क्या रहेगा? आर दोज यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, मींस क्या रहेगा? फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स
which are used for to measure fundamental quantities. Okay, such a unit is called as fundamental unit. Okay, such a unit is called as fundamental unit. Fundamental units. Okay, these fundamental units means what are those units which are used for to measure fundamental quantity. means what fundamental quantity हमें measure करनी है लेंथ. अब लेंथ मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे उस यूनिट को हम क्या कहेंगे फंडामेंटल यूनिट. मीन्स लेंथ आपको मेजर करना है, आप यूज करोगे मीटर या फिर सेंटीमीटर, तो मीटर एंड सेंटीमीटर क्या हुए फंडामेंटल यूनिट्स हो गए. तो ये था फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स. नेक्स्ट पॉइंट आपको है टाइप्स. देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स. तो नेक्स्ट हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स राइट करेंगे विद देयर SI यूनिट्स एंड विद देयर सिंबल्स. ओके, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. वन बाय वन हम सब राइट करेंगे. ओके, वन बाय वन हम सब राइट करेंगे. सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है यूनिवर्स के अंदर. टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और सब हम यहाँ पर राइट करेंगे. तो देखो आपको एक टेबल करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए. फंडामेंटल क्वांटिटीज quantity, then next SI unit and then next symbol of SI unit. Okay, now first fundamental quantities आपको आती है लेंथ. अब देखिए लेंथ का SI यूनिट क्या है मीटर एंड देन नेक्स्ट सिंबल क्या है मीटर का स्मॉल m. देन नाउ नेक्स्ट आपको दिया है मास. तो मास का ऐसा यूनिट आपको है किलोग्राम. किलोग्राम का सिंबल आपको दिया है kg. देन नाउ नेक्स्ट आपको थर्ड दिया है टाइम का ऐसा यूनिट आपको दिया है सेकेंड का सिंबल है स्मॉल s. देन नाउ नेक्स्ट आपको दिया है फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन. उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल के से या फिर कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं. देन नेक्स्ट टेम्परेचर के बाद आपको दिया है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट आपको दिया है एम्पियर और इसे हम डिनोट करते हैं एम्पियर दिया है और इस एम्पियर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से. ओके, देन नाउ नेक्स्ट आपको दिया है नंबर 6 दिया है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ओके, 6 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको दी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. लुमिनस इंटेंसिटी के लिए आपको यूनिट दिया है कैंडेला और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल cd से. ओके, देन नाउ नेक्स्ट लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी आपको दिया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अब देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट रहता है मोल और इसे हम डिनोट करते हैं MOL से. मीन्स दैट इज मोल. ओके, तो देखिए these are the 7 fundamental quantities which are to be used in all over universe. Okay, 7 fundamental quantities दिए है राइट कर with their SI unit and with their symbols. Okay, तो देखिए ये हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज. देन नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है फिजिकल क्वांटिटीज. हमने देखा सबसे पहले हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज, उसका डेफिनेशन देखा, उसके एग्जांपल्स देखे. देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम देख रहे हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फर्स्ट वन इज व्हाट फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसका हमने डेफिनेशन देखा, जिसका हमने एग्जांपल भी देखा एंड उसके 7 फंडामेंटल क्वांटिटी वो भी हमने यहाँ पर
विद देयर यूनिट्स राइट कर लिए। देन नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है आपका फिजिकल क्वांटिटीज का, सेकंड टाइप आपको आता है डिराइव क्वांटिटीज। ओके, अब व्हाट इज मीन बाय डिराइव क्वांटिटीज एंड व्हाट इज मीन बाय डिराइव यूनिट्स वो हम देखेंगे। नोट कर लो, किसी को नोट करना है तो नोट कर लेना। ओके, ना नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिराइव क्वांटिटीज। ओके, व्हाट इज मीन बाय डिराइव क्वांटिटीज। ओके, डिराइव क्वांटिटीज। ओके, अब देखिए डिराइव क्वांटिटीज मीन्स क्या रहता है, जैसे कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखा, फंडामेंटल क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी थी जो कि दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं थी फॉर देयर मेजरमेंट। ओके, बट अब हम क्या देख रहे हैं, डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज क्या रहेंगे, डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स। ओके, दिस डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज आर those quantities which are depends on any other physical quantities, such a quantity is known as derived quantities। ओके, तो देखिए डिराइव क्वांटिटीज मींस क्या रहता है, डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल देखिए क्या रहेगा, वॉल्यूम आएगा, देन नेक्स्ट वेलोसिटी, देन नेक्स्ट एरिया, देयर आर नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटीज, सो वी हैव टू राइट एक्सेट्रा। ओके, अब देखिए वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम आपको मेजर करना है, तो किसके ऊपर डिपेंड है, एनी अदर मीन्स वॉल्यूम आपको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ओके, किसी स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है या फिर किसी अदर चीज़ का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए जनरली फॉर्मूला क्या रहता है, सर्कल का वॉल्यूम फाइंड करने के फॉर्मूला रहता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, मीन्स आर एंड एल क्या हुए, लेंथ हुए, सो लेंथ के ऊपर डिपेंड है। देन नेक्स्ट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी भी एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देन नेक्स्ट एरिया भी एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इन शॉर्ट डिराइव क्वांटिटीज मींस क्या आएगी, आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, मींस ऐसी क्वांटिटीज जो कि दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर मेजरमेंट। मींस से आत्मनिर्भर भारत के अंदर नहीं आ सकता। ओके, अब देखिए डिराइव क्वांटिटीज हो गए। देन नेक्स्ट आपको हम देखेंगे डिराइव यूनिट्स। ओके, डिराइव यूनिट्स। ओके, डिराइव यूनिट्स मींस क्या रहेगा, जैसे कि हमने देखा था फंडामेंटल यूनिट्स क्या रहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स मींस रहते हैं आर दोज यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटी भी सेम आएगा, आर दोज यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डिराइव क्वांटिटीज। ओके, डिराइव यूनिट्स आर दोज units which are used for to measure derived quantities, to measure derived quantities। ओके, मीन्स ऐसे यूनिट जो कि डिराइव क्वांटिटीज मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो ऐसे यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, डिराइव यूनिट्स। ओके, such a units is called as are called as derived units। ओके, अब देखिए ये होगा डिराइव क्वांटिटीज एंड डिराइव यूनिट्स। ओके, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए ये होगा डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव यूनिट्स। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में देखा था फिजिकल क्वांटिटीज मींस व्हाट विद देयर एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट वन इज व्हाट फंडामेंटल क्वांटिटी, देन नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटी। ओके, तो हम एक बार रिवीजन करेंगे क्या क्या देखा हमने। फिजिकल क्वांटिटी देखा, फिजिकल क्वांटिटी मींस क्या, ऐसी क्वांटिटी जो कि सब्जेक्टेड है टू इक्वली ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी, दैट इज डिटेल एनालिसिस, प्रिसाइज मेजरमेंट एंड देन नेक्स्ट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ओके, उसके एग्जांपल देखिए मास, लेंथ, वॉल्यूम, वेलोसिटी, these are the examples of
फिजिकल क्वांटिटीज। देन नेक्स्ट हमने देखा टाइप्स ऑफ physical quantity. First one था fundamental quantity. Fundamental quantity means what? Which are depends on which do not depends on any other physical quantity. Okay, fundamental quantity means what? Do not depends on any other physical quantity. Then next हमने देखा fundamental units used for to measure fundamental quantity. Then next अब हमने देखा derived quantities. Derived quantities are those quantities which are depends on any other physical quantities. Example हमने देखे volume, velocity, area. Derived units हमने देखा are those units which are used to measure derived quantities. Okay, then next अब आपको पॉइंट आता है, उसके बाद आपको पॉइंट आता है यूनिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट. ओके, यूनिट मीन्स क्या रहता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट क्या है. ओके, अब देखिए यूनिट्स मीन्स क्या रहेगा, इससे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. यूनिट्स इज द स्टैंडर्ड और रेफरेंस विच इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी. ओके, बट अब इसे हम राइट करेंगे. अब देखिए यूनिट मीन्स क्या रहेगा. यूनिट मीन्स इट इज अ रेफरेंस or standard used for to measure physical quantity, okay, means क्या यूनिट मीन्स क्या, इट इज अ रेफरेंस और स्टैंडर्ड टू यूज फॉर टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी. मीन्स फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड या फिर जो रेफरेंस हम यूज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट्स हम कहेंगे. ओके, अब देखिए यूनिट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट क्या है वो हम देखेंगे. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट. ओके, इसके अंदर आपको यूनिट के अंदर फर्स्ट पॉइंट आपको आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट. मीन्स जो आप यूनिट यूज करने वाले हो फॉर योर मेजरमेंट, वो यूनिट किस तरह से होना चाहिए वो हम देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट. ओके, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट, इसके अंदर आपको सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है फॉर गुड यूनिट. आपका यूनिट गुड होने के लिए आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, इट शुड बी वेल डिफाइंड. ओके, इट शुड बी वेल डिफाइंड. It should be well defined means what. अब देखिए it should be well defined means what. फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, पेन की हाइट आपको मेजर करनी है, आप क्या करोगे सेंटीमीटर स्केल यूज करोगे. बट आपने देखा होगा कुछ सेंटीमीटर स्केल के ऊपर आपको नंबर्स क्लियरली नहीं दिखाई देते, या फिर उसको उस स्केल के ऊपर जो लाइन्स रहते सेंटीमीटर लाइन्स वो क्लियरली विजिबल नहीं रहते. ओके, तो देखिए क्लियरली विजिबल ना होने की वजह से या फिर नंबर ठीक से ना देखने की वजह से आपका जो मेजरमेंट आपका गलत हो सकता है या फिर उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो सकता है. ओके, तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करने के लिए आपका यूनिट किस तरह से होना चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड. ओके, मीन्स वेल डिफाइंड होना चाहिए आपका यूनिट. ओके, देन नाउ नेक्स्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल. ओके, इट शुड बी इजीली अवेलेबल. इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल. ओके, रिप्रोड्यूसिबल क्यों कहा है, क्योंकि अगर आपका यूनिट डैमेज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो फिर से रिप्रोड्यूस होना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट आपको दिया इट शुड बी पेरिशेबल. ओके, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल. इट शुड नॉट बी पेरिशेबल. इट शुड नॉट बी पेरिशेबल. देन नाउ नेक्स्ट आपको दिया है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया है, इट शुड बी इनवेरिएबल. ओके, इट शुड बी इनवेरिएबल. इट शुड बी इनवेरिएबल. देन नेक्स्ट आपको दिया है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. इट शुड बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. इट शुड बी एक्सेप्टेड यूनिवर्सली. ओके, दिस यूनिवर्स ने उस यूनिट को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. ओके, तो देखिए दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट. एंड देन नेक्स्ट व्हाट इज बाय यूनिट्स. ओके, तो इतना किसी को नोट करना है तो नोट कर लो. एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यूनिट मीन्स क्या है, इट इज द रेफरेंस और स्टैंडर्ड यूज फॉर टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट कौन कौन से, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, इट शुड नॉट बी पेरिशेबल,
it should be invariable and it should be accepted universally. Okay, so these are the characteristics of good unit. Okay, now today we have to stop here. अगर आज जो मैंने आपको जो टीच किया है उसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर कुछ क्वेरीज है तो इसके लिए मैंने आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया है, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो. देन नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको 11-12 के अंदर अगर आपको जेईई या फिर अगर आपको